ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے تاجر صنعت کاروں کے تحفظات. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب کے سربراہ کی جو ایک پریس کانفرنس آپ کہہ لیجئے، جس میں انہوں نے براہ راست مخاطب کر جو ہے بہت ساری باتیں بتائیں. ظاہری باتیں ان کی بات میں وزن بھی تھا، لیکن دوسری جانب جو ہے ایف بی آر اور ٹیکسیشن والے مسائل ایف بی آر ہی ہینڈل کرے تو بہتر ہے. بلکہ میرے خیال سے تو ہمارے ہاں تھوڑی سی ریلیکس ٹیکس رجیم ہونی چاہیے. میں تو ہمیشہ سے اس کے حق میں رہا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے ہر آدمی میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. تاہم ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو گئی کہ جو معاملات بینکاری سے منسلک ہیں وہ بھی پھر اسٹیٹ بینک ہی مینیج کرے تو بہتر ہے. تو سلسلہ یہ ہے کہ نیب کا جو مینڈیٹ ہے وہ ظاہری بات ہے سرکاری افسران سیاستدانوں تک ہی محدود رہے تو یہ بہتر ہے. یہ میری رائے ہے، ہر شخص اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، بالخصوص صحافی جو کہ ماضی کے اندر یہ کہتے رہے کہ جی ان کا تعلق صرف سرکاری افسران اور سیاسی عہدیداران سے ہی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب چلے گئے، اس کے بعد ان کو احساس ہوا. اچھا اتفاق کی بات یہ، نواز شریف صاحب شاید ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، بڑے محترم ہیں، میں تو ان کو پسند بھی کرتا ہوں، کافی عزت بہت کرتا ہوں. پسند عمران کو تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں لیکن ان کو بھی پسند کرتا ہوں. تو نواز شریف صاحب نے آج تک جو قوانین بنائے نا اپنی حکومت میں رہ کر، اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ بیک فائر ہو گیا. جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا، وہ بندوق چلاتا ہے ٹھا، وہ الٹی اس کے لگ جاتی ہے چوٹ. تو پہلے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ATC لے کر آئے، اینٹی ٹیررزم کورٹس نا، اس کا ٹھا وہ ان کے اپنے اوپر ہی لگ گیا. کیونکہ وہ مشرف صاحب بھی بیٹھے دبئی میں دیکھ رہے، سر چادر ہٹا کے ذرا کھل کے دیکھا کریں، مشرف صاحب چھپ کے نہیں دیکھا کریں. مشرف صاحب نے ان کے اوپر کیس بنا دیا وہ ہائی جیکنگ کا. پھر بنا کیا آگے وہ پھر میں نہیں بتاؤں گا، پھر میرے پر جل جائیں گے. لیکن جو بھی ہے ان کے اوپر کیس بنایا، ان کو دہشت گردی کے اس میں چلایا، وہ خوب جناب ٹینشن رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے احتساب کا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سیف الرحمان صاحب ابھی دیکھ رہے ہوں گے. سر آپ قطر میں ہی ہیں سیف الرحمان صاحب یا آ گئے واپس پاکستان؟ ہاں پہلے جیسے یہ شہزاد اکبر صاحب ہیں نا ابھی جو وزیر احتساب ہیں، ایسے ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے سینیٹر سیف الرحمان صاحب. تو وہ اب میرے خیال قطر میں ہوتے ہیں زیادہ، پتہ نہیں قطر میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے. سر آپ دیکھ رہے ہوں تو بتائیے گا فون کر کے بعد میں. تو انہوں نے بھی اس طرح احتساب یہ وہ فلاں احتساب ہوگا. پھر جنون گروپ نے گانا بھی بنایا احتساب. اور پھر اس کے بعد وہ بیک فائر یہ ہوا کہ آج کی تاریخ میں جا کے وہی کیس میں پھنس گئے. تو وہ جو ہے نا وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہتھیار وہ بنا رہا ہے وہ کہیں اس کو خود ہی کو نقصان نہ پہنچائے. خیر ہمارے ساتھ بڑے یہاں مہمان شامل گفتگو ہوں گے اور آج ہم ان سے یہی بات کریں گے کہ یہ جو بددعا کر کے بجتی ہے تو یہ واپس آ کے جو لگنے والا نقصان ہے جسے ریکوائل کی وجہ سے نقصان کہتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے اور بالخصوص ابھی ہمارے یہاں احتساب کے ادارے جو ہیں ان کو یہ کہنے پر کیوں مجبور ہونا پڑا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ FPCCI. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. دوسری جانب ہمارے پاس اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں جناب انجینئر MA جبار صاحب جو کہ سابق نائب صدر رہے ہیں FPCCI کے. دونوں مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں اور براہ راست ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بات یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اچھا نہ ہوتا کہ عمران خان صاحب ماضی میں خود ہی نیب کے ادارے کے ساتھ آئین کے حدود میں رہتے ہوئے، آئین اور قانون کے حدود میں تھوڑا سا ان کو بتا دیتے کہ ویکھو جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کہ ویکھو جی اس طرح نہ کرو، تھوڑا جا تسی کاروباری حلقے دا خیال کرو. تو بعد وچ سانوں اس طرح دیاں پریس کانفرنساں کرن دی، میری زبان کے اندر سوری وہ ورڈ کچھ اور ہوتا ہے، پھر ضرورت نہ پڑے. سوری میں جہاں کی بولی بولتا ہوں وہاں پہ ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے ضرورت کے لیے جو اردو میں کسی اور معنی میں لیا جاتا ہے. جی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو نیب کا قانون تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تھا، احتساب کے لیے تھا، اکراس دی بورڈ تھا اور ایک سخت قانون تھا. اور اس قانون میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین نیب کو بہت زیادہ پاور ہیں اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ آپ احتساب بڑے لوگوں کا جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پورے پاور. سابق چیف جسٹس رہے ہیں چیئرمین نیب، لوگ اس اور چیز سے یہ واقف نہ ہوں. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب سابق چیف جسٹس رہے ہیں اور انکریڈیبل ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اور سخت آدمی ہیں، اصولی پسند آدمی ہیں. تو اس میں جو طبیعت مزاج بزرگ کی دعا جی بتائیے سوری وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ نیب نے آہستہ آہستہ اپنا ایمبٹ بڑھایا اور انہوں نے پولیٹیشنز کو یا بیوروکریٹس کو
साथ साथ उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी नोटिस सर्व कर दिए, कुछ बिजनेस कम्युनिटी को वहाँ बुलाए गए हैं, बड़े जो बिजनेसमैन हैं कुछ को उन्होंने बंद भी किया था। तो ये इस पे बिजनेस कम्युनिटी में एक हलचल मच गई, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के मैटर कमर्शियल होते हैं, वो कमर्शियल नोयत होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ जो बहुत ज़रूरी है, मैं आज उस बिजनेस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा जो किसी पॉलिटिशियन के साथ मिलके कोलिजन करके और वो मनी या आप बुरा मान लॉन्ड्रिंग गए या उससे करप्शन, नहीं, आप बुरा मान गए, आप नहीं गए वहां पर इसलिए आप बुरा मान गए, इसलिए आपने उनको कह दिया देखो ऐसे नहीं बोलो, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब हमारे लिए बाइज्जत है, आपके नहीं, साथ मेरी बात कंप्लीट करने दें ज़रा सी, ताकि मैं एक अहम इशू के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू और फेडरेशन नहीं, लोग आपकी राय को कहीं गलत ना समझे हाँ, ना गलत सर। ना समझे ना। मियां मंशा साहब भी इज्जतदार आदमी है ना सर, उनके बारे में इस तरह कई लोग ऐसे ना समझ लें। तो मैं ये कह रहा था कि हम इस बात के तो यकीनन हम सपोर्ट में हैं कि भाई बिज़नेस कम्युनिटी को हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, आपने जो खौफराज की फ़ज़ा नहीं पैदा होना चाहिए। सरमायाकार सबसे ज़्यादा शर्मिला होता है, वो जब चला जाता है तो फिर सालों लगते हैं उसको दोबारा जहन बनाने के लिए। और यही वजह है कि मुल्क में आजकल ना कंस्ट्रक्शन का कारोबार हो रहा है, ना बिल्डर्स आगे हैं जो बिल्डिंगों की थी उनके प्रोजेक्ट। मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं इंजीनियर एम ए जब्बार साहब की भी इनपुट ले लूं, फिर ब्रेक के बाद वापस आके आपके साथ भी बात करूंगा। इंजीनियर एम ए जब्बार साहब, अब बात यह है कि आई थिंक द कैट इज़ आउट ऑफ द हैट। आपके ख्याल से ये मामलात जो पिछले दिनों पेश आए हैं, ये किस चीज़ की अक्कासी करते हैं? क्या हुकूमत पे ताजर व सनतकारों ने अदम एतमाद का इजहार किया है? हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इनवेरिएबली मैं कहूँगा सारे लोग, अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की, मैं सारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इनवेरिएबली सारे लोगों को इस वक्त एक टैक्सेशन निज़ाम, या जिसको कहना चाहिए एक सफोकेटिंग टैक्सेशन निज़ाम, प्रेफर्ड ओवर दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या प्रेफर्ड ओवर दी इकोनॉमी। तो अगर ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट जो इस वक्त जो है एक सफोकेशन के हद तक पहुंच चुका है, तो मेरा ख्याल है कि सभी को उससे शिकायत हैं। मेरा ख्याल है कि ये शिकायतों के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें और मिक्स हुई रिसेंटली, और ऐसा लगा कि प्रेफर्ड ब्लेम जो है वो नैब को दिया जाए। हालांकि मेरे ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं है। इस वक्त जो कुछ हम चीज़ें देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड जो है, जो कंज्यूमर इज़ अ एंड रेसिपिएंट ऑफ द होल इकोनॉमी, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई है, आपकी जो सर्विस सप्लाई है, आपकी जो एग्रीकल्चर सप्लाई है, इस सारे की एक डिमांड कंजम्पशन जो है वो कंज्यूमर के पास आती है। ये इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। मैं वजाहत के साथ चंद चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा, और चंद जो खबरें मेरी बिल्ली ने इस्लामाबाद से मुझे ला के दी हैं वो भी बताऊँगा। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी है हमारी, और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हैं। बात यह कि इस्लामाबाद में मेरी बिल्ली ने तो मुझे बहुत कुछ बताया कि हकीकत क्या है, लेकिन सब बता दूं तो फिर पाकिस्तान के सियासी माहौल में भौचाल आ जाएगा। आपको पता है मेरी तो एक क्लिप इतना चली है कि मेरा ख्याल पूरा साल एंकर लगे रहे, उनकी क्लिप इतनी नहीं चली जितनी एक क्लिप मेरे प्रोग्राम की चल गई। खैर एनीवे, मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता, पर मैं क़यामत के हाल भी आपको नहीं बताऊंगा, ना लकड़हारे की कहानियाँ बताऊंगा, और मेरी आदत नहीं है। लेकिन जो ठोस बात है वो ये है कि टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू, और इस वक्त फेस वैल्यू ये है कि गवर्नमेंट से इकोनॉमिक इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे, और ये संजीदगी से नहीं लेते रहे या मजाक समझते रहे। मैं रोज़ आकर यहाँ पर भौंकता, माजरत बोलता रहा कि भाई मेरी सुन लो, हाथ जोड़ता रहा कि प्लीज़ लिसन टू मी, इकोनॉमी इज़ हेडिंग टुवर्ड्स डिज़ास्टर, and they took it like a joke. Today, they are all facing embarrassment and they don't know what to do. They are doing face saving. The truth is, economy is in tatters and they can still fix the situation. मैं बार बार यही कहता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, you can still fix the situation. It's not out of hand. जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब,
माजरत वो लुकमा मैंने शुरू में आपको दे दिया है। बात बड़ी अहम है, मैं क्लैरिफाई करूं। देखिए हाँ, हमारी वजाहत करें। चेयरमैन नैब से 2 मुलाकातें हुई हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छे माहौल में हुई। एक में हम, मुझे ज़रा सा बोलने दें प्लीज़। एक में हम इस्लामाबाद में नैब हेड क्वार्टर में चेयरमैन नैब से मिले थे और उस पर उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि ये टैक्स के मैटर्स, ये सेल टैक्स के मैटर्स, कमर्शियल नौयत की जो मैटर्स, बिज़नेस कम्युनिटी के जो मैटर्स हैं, ये हम नहीं डील करेंगे। हम ये सब केस जो हैं एफबीआर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एफबीआर के पास पूरी पावर है, हमने उन्हें बतलाया। वो अकाउंट भी फ्रीज़ कर सकती है, वो प्रॉपर्टी भी सीज़ कर सकती है, वो एफआईआर भी कटवा सकती है, लिहाजा उनको हैंडल करने दें। और उन्होंने बहुत ही मुस्बत अंदाज में ऐलान भी किया और उस पर केसेस को भी ट्रांसफ़र करने का कह दिया। दूसरी मुलाकात चेयरमैन नैब, जिस रात को हमारी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से, उसके दूसरे दिन दोपहर को चेयरमैन नैब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने डीजी पंजाब के साथ जो शहजाद साहब हैं वो आए थे लाहौर में, और वहाँ पे भी उन्होंने तफसीली बात की और उन्होंने कहा देखें वो बिजनेसमैन जो जैसे सोसाइटियों में लोगों के पैसे खा गए, खून चूस लिया है, उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो भाग गए हैं, 1 गज ज़मीन नहीं थी और उन्होंने लोगों की 20-20 हज़ार फाइलें बना के लोगों से पैसे ले लिए। हम उनके साथ हैं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें वो बिजनेसमैन जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग में, या जो जिनकी ट्रेल मिलती है कि पॉलिटिशियन के साथ मिलके उन्होंने साज़बाज किया, या पॉलिटिशियन ने उनको इस्तेमाल किया, या उन्होंने पॉलिटिशियन के साथ मिलके कोलिब्रेशन की और मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हम उनके भी साथ नहीं हैं। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी को नैब से और इस तरह ऐसे इदारे से दूर रखा जाए ताकि उनका एतमाद बहाल हो, वो मुल्क में सरमायाकारी करें बिला खौफ और मुल्क में नई जॉब क्रिएशन हो। और अब मुझे खुशी है कि आर्मी चीफ साहब ने भी यही बात हमें यकीन दिलाई है और यही चेयरमैन नैब ने भी दिलाई है और वज़ीर आज़म साहब ने इतना भी एक डिप्लोमेटिक कमेटी भी नहीं बनाने होना को चाहिए कहा। सर। मानता हूँ आप सियासतदान हैं और आप लंबी रेस के घोड़े हैं, लेकिन इतने डिप्लोमेटिक भी नहीं हो। राज की बातें तो आपको भी पता हैं। खैर एनीवे, इंजीनियर एम ए जब्बार साहब, अब आप मुझे बड़ा खुल के बताएंगे भाई कि क्या वजह है कि वहाँ पर, वैसे तो फेडरेशन एपेक्स बॉडी है, लेकिन जो मुझे दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि वहाँ पे 80% बिजनेसमैन वो थे जो मैंने कभी फेडरेशन में नहीं देखे और ना ही फेडरेशन को अपनी नुमाइंदा तंजीम तस्वुर करते हैं या वहाँ से अखज़ करते हैं अपनी ताकत। वजह क्या है? इसका सवाल का जवाब खुल के देना पड़ेगा एम ए जब्बार साहब। नो डिप्लोमेसी विल बी एक्सेप्टेड। देखें, आप के सवाल का जवाब बिल्कुल हम सच्चाई के साथ देंगे और फैक्ट्स के साथ देंगे और सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द सिचुएशन के हिसाब से देंगे। मगर मेरा ख्याल है कि अभी तक जो आपने गुफ्तगू की कि उसको 2-3 मिनट में समेटने की कोशिश करूँगा कि आप बार बार हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की। देखिए, 2 किस्म के कॉन्फिडेंस होते हैं जैसे इकोनॉमी रन्स। एक कॉन्फिडेंस होता है अपना कंज्यूमर का, एक कॉन्फिडेंस होता है उस इन्वेस्टर का जिसको हम कहते हैं कि हु इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग से इन एनी सब सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों का कॉन्फिडेंस अगर किसी तरीके से नीचे आया है तो उसके असबाब माशी हैं। सबसे बड़ा असबाब उसका सफोकेटिंग टैक्स फ़िलॉसफी है जिसके ऊपर कोई भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। उसके अब असबाब जो है वो गैस और बिजली के बढ़ते हुए टैरिफ्स हैं, पेमेंट्स हैं। उसके असबाब जो है रन ऑन द रुपी है जिसको हम कहेंगे इंपोर्ट बेस्ड इन्फ्लेशन। उसके असबाब जो है वो 13.2, जहाँ पे आज माइक्रो फाइनेंसिंग 28% पे इस मुल्क में हो रही है। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी मैं आपको आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ कि यहाँ पे 3.2 मिलियन 3 साल पहले के डेटाज हैं। आई वाज अ मेंबर बोर्ड ऑफ समीडा, आई वाज इन्वॉल्व इन डेफिनेटली अ सर्वे, यानी 32 लाख SMEs। उसको फिर जब अब नंबर किया गया तो वो 4 मिलियन पे आई और उसको अगर एग्रीकल्चर के हवाले से स्मॉल फार्मर्स के ग्रुप्स को लिया गया तो 6 मिलियन आई। वो 6 मिलियन के रिप्रेजेंटेटिव तो कहीं पे नहीं हैं। फेडरेशन की भी आपने बात कही तो मेरा ख्याल है कि वो जो ग्रुप गया है वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का है। लेट्स बी वेरी कैंडिड, मैंने कल ज़ुबैर तुफैल से भी ये बात पूछी कि भाई वो कौन लोग थे और वेदर फेडरेशन वाज देयर और नॉट। उसने कहा जी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर के तौर पे मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो अब थोड़ी देर के लिए हम वापस आते हैं एक एलीट तबका, यानी शुरू से मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल
शुरू से मैं देख रहा हूँ कि इवन विजिट्स टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस, शुरू से मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक एलिट तबका है और उस एलिट तबके में कुछ लोगों को शिकायत है नैब से। थोड़ी देर के लिए हम समझने की कोशिश करें कि आखिर नैब क्या काम करती है। देखें ना, नैब काम करती है, पहले तो मेरा ख्याल है उस गैप को मैं पूरा करूं कि 20 का नंबर हमने सुना, 32 का नंबर सुना, उससे बड़ा नंबर नहीं सुना। हम इसे आई एम जस्ट गोइंग टू इंटरप्ट यू फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेकर आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी इंजीनियर अब्बे जब्बार साहब से। उन्होंने तफसीलन जो है बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली, बीच में मैंने उनको इंटरप्ट ज़रूर किया। और हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हैं, वो भी बेताब ज़ाहिर बात है, उन्होंने बात मुकम्मल करनी है जो पिछली रह गई थी। लेकिन अगर एक जुमला आप एम जब्बार साहब कंक्लूड कर लें अपनी बात का, तो फिर मैं ज़रा डॉक्टर साहब की जानिब जाऊँ। जी नहीं, मैं जिस कॉन्फिडेंस की बार बार आप जिक्र करते हैं उसको कंक्लूड करता हूँ जी, कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए बैठकर देखें तो कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को तो इस सारे एक रन ऑन द रुपी, उसके बाद जो है ये इंटरेस्ट रेट्स, उसके बाद हाइक इन ऑल द यूटिलिटीज़, ये सब मिलजुल के जब उसके सामने आती हैं इन द साइड ऑफ टू बी रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, तो उसकी अपनी अफोर्डेबिलिटी जो है, उसका जो एक इंडेक्स ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको कहें वो कंज्यूमर का, वो तो ऑलरेडी जो है वहाँ पे बुरी हालत से मुतासर हो गया जी। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि क्या बुरी हालत है आज कि एक प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू जीडीपी जो 2007 और 8 में 27% हुआ करता था जी, आज वो आधा हो गया है। इस 12-13% इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी में आपकी कौन सी कैपिटल फॉर्मेशन होने वाली है? तो इसको मैं कंक्लूड करता हूँ कि ये हैं माशी रीजंस जिसके वजह से ये सूरत हाल जो हमें मिली है वो आज के दिन में नहीं है, कुछ इसमें वरासत भी शामिल है। अब हम वापस आते हैं आपके उस पहलू की मैं तरफ आपकी जानिब वापस आता हूं। अब मैं इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं आपके पास आकर, लेकिन पहले डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, अब बात ये है कि आपने वो बात तो क्लैरिफाई कर दी, लेकिन लेट्स बी नाउ वेरी फ्रैंक, लेट मी टर्न द क्वेश्चन टुवर्ड्स यू। इट नीड्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ evaluation as to why business representatives from FPCCI are perhaps not as present in these kind of seminars as they should be. Do you think this issue should be addressed? नहीं, देखिए ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने जो अपना तारुफ वहाँ पे कराया था, अगर आपने सुना है तो उन्होंने कहा था कि मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI की हैसियत से वहाँ पे थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें भी ये कंसर्न है कि FPCCI जो अपेक्स बॉडी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री की, पूरे देखें बिजनेस मुतारिक तो आपको होना पड़ेगा। मुझे ज़रा सा बोलने दें प्लीज़। बिजनेस काउंसिल कारपोरेट सेक्टर की बेहतरीन नुमाइंदा है, चले, और उनको रिप्रेजेंट करती है, लेकिन फेडरेशन पूरे पाकिस्तान की छोटे स्मॉल ट्रेडर्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, वुमेन चैम्बर्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबको रिप्रेजेंट करती है। लिहाजा फेडरेशन की रिप्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी होती है। जब भी आप मुतहरिक नहीं हैं शायद उतने, मेरा ऐसा ख्याल है। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। नहीं देखिए बात सुने, मुझे क्लैरिफाई। इससे पहले हमारी बाजवा साहब से मीटिंग कराची में कोर हेडक्वार्टर 5 में हुई थी, 4.5 घंटे की। फेडरेशन के लोग थे, चैम्बर के लोग थे, और हमने उससे पहले DHA गोल्फ क्लब कन्वेंशन सेंटर में हमने बाजवा साहब आए हुए थे, एक सेमिनार था सिक्योरिटी और दिफा के ऊपर। तो इस बार हमें नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो हमेशा हमको माजी में बुलाते रहे हैं, उन्होंने डिस्कस किया है। मे बी नेचर ऑफ ग्रीवेंसेज ऐसी थी, मे बी लेट्स पुट इट दिस वे, नेचर ऑफ ग्रीवेंसेज ऐसी थी कि जितने लोग जिनकी मतलब उस नौयत की ग्रीवेंसेस थी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को, बहरहाल 3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई इस हफ्ते में। बाजवा साहब से मीटिंग हुई बिजनेस कम्युनिटी की, प्राइम मिनिस्टर साहब से दूसरे दिन हुई मीटिंग, और फिर चेयरमैन नैब जो हैं वो फेडरेशन आया। इन तीनों का मकसद था
बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना, बहाल करना, थोड़ा सा रेक्टिफाई उनके खौफ को दूर करना और उनको ये पैगाम देना कि आप अपना सरमायाकारी करें, आप अपने प्लान्स के तहत जो मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लो। जी जो फरमाइए। पहले दिन वफ्द सेमिनार में गया वो फ़र्क था, जो वज़ीर आज़म से मिला वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो फ़र्क वफ्द था, जो चेयरमैन नैब साहब से मिला उसी दौरानिए में वो फ़र्क वफ्द था, लेकिन वो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसमें FPCCI की एक नुमाया शख्सियत मौजूद आए थे FPCCI में वो लाहौर में, बता रहा हूँ लाहौर में, तो लाहौर की जो नुमाया शख्सियत हैं आपकी, जी, जो आप सब नाम ले दें, आप नाम ले दें, तो लाहौर की मलिक थे, हाँ बस आप ये साहब बोल ने दें ना, चेयर किया था, तो पूरी तो हमारी सब लाहौर की फर्क लीडरशिप थी। फर्क होगा ना, यानी ओवरऑल सबको ही एड्रेस कर लिया गया, यानी एक तरह से ऐसे नहीं है कि किसी एक हलके को, लेकिन तमाम हलकों को मुतमईन किया गया। ये आप कह रहे हैं एक अच्छी चीज़ हुई है। यू थिंक मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों जगहों से जो एक इनिशिएटिव था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहिए, इकोनॉमी को, उससे बड़ा मुस्बत मैसेज गया है। बिलखुसूस जनरल बाजवा साहब की जो मीटिंग थी, जो उनमें डेडिकेशन, जो उनमें एक दिलचस्पी, जज्बा था, डर था को रिवाइवल के लिए, जी जी। और फिर उसके ऑफशूट्स दूसरे दिन वजीर आजम और फिर चेयरमैन नैब जो फेडरेशन आए, ओवरऑल एक मुस्बत मैसेज गया है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में। हम अप्रिशिएट करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अब इसी अंदाज में हम आगे चलेंगे और मुल्क की इकॉनमी की बड़ा बहाली देख की के तरफ खेलते हैं काम आप। करेंगे। मैं आपको बॉल कराता हूँ गूगली, आप उसे बड़े तरीके से खेल देते हैं कवर्स की जानिब। चलो ठीक है, लेकिन मुंह से आपके चंद चीज़ें निकल आती हैं, मैं उनको पकड़ लेता हूँ। खैर एनीवे, इंजीनियर MA जब्बार साहब, बात अब ये है कि सर इकोनॉमी को अब फिक्स करना है, ये मांगते हैं सोल्यूशन हमसे। एक तरफ कहते हैं कि जी आप लोग सोल्यूशन बताएं, मुझे बताएं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इख्तियार हासिल करने के बाद बंदा कह के अब मेरी ज़िम्मेदारी आप पूरी करें। मेरे ख्याल ये थोड़ा गलत हो जाता है। बात यह है कि अगर इख्तियारात मिलते हैं तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मेरे ख्याल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम को ट्रांसफ़र कर देना, आप लोगों को ट्रांसफ़र कर लेना, या जैसे ये लोग कहते हैं मेरे जैसे या और मेरे जैसे लोग जो कि मीडिया पर जिन्हें ये कहते हैं टके टके के लोग, उन लोगों से सोल्यूशन मांगना मेरे ख्याल से गैर जिम्मेदाराना है। सोल्यूशन कहाँ लाई करता है ये गवर्नमेंट को बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें आप बताएं सोल्यूशन। जी देखें जी, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्ट पढ़ लें, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, दिस इज़ द फैक्ट कि इस इकोनॉमी में बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं और उन सारे सब सेक्टर के लिए एक मखसूस तकाज़ा हैं किस चीज़ों के, फिस्कल एडजस्टमेंट, उनके पर तकाज़ा हैं। थोड़ी देर के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, उसके बाद कुछ तकाज़े हैं स्टेट बैंक के स्पेशल प्रिविलेजेस जो 5 सेक्टर को आज भी किसी न किसी हवाले से, सब्सिडीज़ के हवाले से जो है वो एक्सटेंड होते रहें, एक्सेसिवली या ड्यू एक्सटेंड होते रहें। इन सब चीज़ों को, सारे सेक्टर्स को तवज्जो देने के लिए देयर हैज़ टू बी ए एक्सटेंसिव, मेरा ख्याल है कि डेलिबरेशन अक्रॉस द टेबल विथ ऑल दीज सब सेक्टर्स। 20 साल पहले जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ुद FPCCI में आता था। 20 साल पहले जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये पूछा जाता था कि आप कोई 20 से 30 लोग नॉमिनेट करें जो आके हमारे साथ गुफ्त शनीद करें। उस ज़माने में मेरे अपने ख्याल में कि शौकत अज़ीज़ जो है वो कराची में जब आता था तो एक ही वक्त मेरा ख्याल है कि विद दी पैसेज ऑफ हाफ एन आवर इंटरवल एसोसिएशनों से मिलता था, मैराथन सेशंस होते थे। उमर सेलिया का अगर आपने नाम सुना होगा, माय ब्रदर, मुझे याद है कि इस यानी बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में वो टैक्स कंसल्टेंट, चार्टेड अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन बुलाकर हज़ारों लोगों के बीच में एक इंटरप्ले करता था। आज एक इंटरप्ले का लफ्ज़ हमने ISPR के प्रेस रिलीज़ में सुना है। 20 या 32 लोगों के साथ लिखा गया है इंटरप्ले काय का है, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, और कहा गया है कि इन लोगों को इसलिए बिठाया गया है कि ये एक रिस्पॉन्सिव और एक्सेसिबिलिटी का क्या बने, एक आपके लिए मेयार बने। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेसिवनेस सिर्फ इन 20 आदमियों के लिए है? बस पैरों को आग लग गई, बस सूरज के ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना भाई। क्या कर रहे हैं आप
خود بھی بچیں دوسروں کو نہیں میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو جو بتا رہے ہیں وہ ہے آپ کا خیال اس لیے غلط ہے کہ میں نے ٹی وی پہ رہنا ہے اور آپ کا خیال غلط ہے. امپرومنٹس کی نشاندہی کرنا میرا خیال ہے کہ ہم سب کے مفاد میں ہے. اچھا نہیں میں ذرا ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب کی طرف چلا جاؤں. پتہ نہیں کیوں ہر بندہ آج کل میری نوکری کا دشمن بنا ہوا ہے. جی بیگ صاحب اب بات یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی آپ سنی انسنی کر دیں. جو ایک حصہ انہوں نے بولا میں اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا میں بھی اس کو غلط میں جو باقی بزنس مین ہیں وہ بھی بڑے ریسپیکٹڈ لوگ ہیں میرے خیال سے جو اس پینل میں شامل تھے. آئی ہائیلی اپریشیٹ اینڈ ایڈمائر دیئر ایفرٹس. لیکن بات یہ ہے ناؤ وے فارورڈ. میرے پاس صرف میں کہوں گا کہ چند منٹ ہی باقی ہیں اگر آپ کو کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں. جی دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے کہ اس حکومت نے ریئلائز کر لیا کہ جہاں ان کی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بہت ہی نیگیٹو ایڈورس افیکٹ آئے ہیں. اکانومی ہماری ٹھپ ہو گئی ہے, ہماری گاڑیوں کی سیل اور ان کی پروڈکشن 50% رہ گئی ہے, ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے, فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نہیں کنٹرول کر سکے, انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ 50% ڈی ویلیوشن کے باوجود ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے. 17 اور 16% لینڈنگ ریٹ ہو گئے ہیں جس سے نئی صنعت کاری اور نئی انویسٹمنٹ انکلوڈنگ کنسٹرکشنز وغیرہ وہ سب رک گئی ہے. تو انہوں نے یہ ریئلائز کرا کہ یہ ہماری کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی. جب ٹوٹولا تو انہیں پتہ چلا ایک تو آپ کا تھرسٹ تھا ریونیو 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 ریونیو, انڈسٹری بھلے مر جائے, نئی سرمایہ کاری نہیں ہو, ریونیو مل جائے. 5,550 ارب روپے کا ٹارگٹ دے دیا اور شبر زدی صاحب اس کے پیچھے لگ گئے کہ جی آپ کسی طرح سے بھی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو نچوڑیں, نئے جو آتے ہیں ان کو بھی لیں, ٹارگٹ پورا کریں. آئی ایم ایف کی شرائط آ گئی, ایک جملہ اس میں بھی آخر بات آئی ایم ایف کی شرائط آ گئی, اس میں لینڈنگ ریٹ وغیرہ جو بڑھائے اس سے جو ہے اب یہ تمام جو اہم ذمہ دار لوگ ہیں انہیں احساس ہو کہ نہیں ہمیں ریپیئر کرنا ہے, ایسے ہم نہیں چل سکتے, اکانومی اس طرح اس شمبل میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو جنرل باجوہ صاحب جن کو درد ہے انہوں نے بھی بزنس کمیونٹی کا خوف اور یہ شک شبہات دور کرنے کی کوشش کی. پھر جو چیئرمین نیب بھی آئے فیڈریشن میں انہوں نے بھی وضاحتیں کی, ایشورنسز کی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے میرے خیال سے کافی ایریاز کے اوپر روشنی ڈالی اور بہت سارے معاملات کے حل کے لیے کچھ تجاویز بھی دیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.